Okay, so now let's start with our next topic, which is evaluation of diagnostic test. First of all, let's understand that what we are going to discuss in this topic. Basically, when we perform a diagnostic test, for example, we are performing HbA1c for diabetes, or you are doing a COVID PCR test, or HIV ELISA, or even as simple as a pregnancy test. We need to know that how good the test is. So basically, whenever we perform a diagnostic test, it could be for anything, we should know or we need to know how good the test is, and how we can understand or how we can establish that what is the credibility of the test or how good the test is. That is measured by four major statistical properties. Those four major statistical properties are sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value. So today we're going to discuss these four major statistical properties that will give you an assessment or let you know that how good the test is. Clear? Okay. This basic thing is clear to all of you. Okay. So we have established that while we are evaluating or for the evaluation of diagnostic test, we have we have four properties. We have four major statistical properties that you can use to evaluate, that you can use to assess that how good the test is. The first one is sensitivity. Then we have specificity. We have positive predictive value, and we have negative predictive value. So we'll discuss one by one these properties in detail. When I say sensitivity of the test, in simple words, the sensitivity of a test means how good is the test at catching the disease. When I say specificity of the test, it means that how good is the test at ruling out healthy people. When I say positive predictive value, it means if the test says positive or if the test is positive, what is the chance that the patient actually has the disease? When I say a negative, I'll summarize. When I say negative predictive value, it means that if the test is negative, what is the chance? What is the chance that the patient truly does not have the disease?
So basically, today we are going to discuss evaluation of the diagnostic test. Basically, whenever we perform a diagnostic test, it could be a pregnancy test, it could be ELISA for HIV or COVID PCR or HbA1c for diabetes. Any test that we perform, we need to know that how good the test is. And that is measured by four major statistical properties. So we will assess that how sensitive the test is, how specific the test is, what is the positive predictive value, and what is the negative predictive value of the test. And by assessing these four major statistical properties, we can determine, or we get to know that how good the test is. By the sensitivity, it means that how good the test is. Sorry, how good is the test at catching the disease, or you can simply say rule in. By specificity, it means that how good is the test at ruling out healthy people. By positive predictive value, it means if the test says positive, what is the chance the patient actually has the disease? And by negative predictive value, it means that if the test says negative, what is the chance the patient truly does not have the disease? Make sense? Now let's go back to the basics, which is our 2 by 2 table. 2 by 2 टेबल हमने पहले बनाया हुआ है. डिजीज, टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव. अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है और पेशेंट को एक्चुअली डिजीज भी है, तो ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव्स होंगे, फॉल्स पॉजिटिव्स होंगे, या आपके पास क्या होगा? क्या आपके हैं ट्रू पॉजिटिव्स. अगर आपके पेशेंट को डिजीज है, ओके पहले ये करते हैं. अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है बट पेशेंट को डिजीज नहीं है, तो ये क्या होगा? यस, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया है बट पेशेंट को तो डिजीज थी, तो ये क्या वैल्यू होगी? और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया है और डिजीज भी नहीं थी, तो ये क्या होगी? यस, दिस इज योर ट्रू नेगेटिव. और अगर हम टोटल लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. और इनका जो समय वो आ जाएंगे जो आपके पास तो इनका सम यहाँ पे आ जाएगा. और यहाँ पे अगर आप इनको इनका सम देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. और ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. जो हमने 2 बाई 2 टेबल कर लिया है, ये वही है सारा. ये आपकी टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे, मतलब इन सबका सम जो है वो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगी. अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस करना है सेंसिटिविटी को. सेंसिटिविटी का सिंपल मतलब ये होता है ट्रू पॉजिटिव रेट. या सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है द प्रोपोर्शन और नंबर ऑफ पीपल with the disease
who test positive. It measures that how good the test is at catching the disease. ये इसको और सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये सेंसिटिव टेस्ट है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल्स में बताया था कि जब भी हम किसी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, सबसे पहले हम को डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम एक सेंसिटिव टेस्ट को पिक करते हैं। हमने डायबिटीज की एग्जांपल ली थी। जैसे डायबिटीज में सेंसिटिव टेस्ट जो है वो बीएसआर होता है। बीएसआर हमें ये बताता है कि अगर तो पेशेंट को ज़रा भी चांस है बीमारी होने का, कोई भी सस्पिशन है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है, तो लाज़मी बात है उसका बीएसआर जो है वो पॉज़िटिव ही आएगा। तो किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी ये बता रही होती है दैट हाउ गुड द टेस्ट इज़ एट कैचिंग द डिज़ीज़ और डिटेक्टिंग द डिज़ीज़। क्लियर? तो अब क्योंकि सेंसिटिविटी आपका ट्रू पॉज़िटिव रेट है, तो इसका फ़ॉर्मूला होगा ट्रू पॉज़िटिव divided by total, which is, sorry, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। या इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट का सेंसिटिव टेस्ट नेगेटिव आ जाए, लेट्स सपोज आपने बीएसआर कराई और फास्टिंग जो शुगर लेवल है पेशेंट का 70 आ गया है, तो अब कट ऑफ से पीछे आ गया, विच मीन्स के टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो अगर किसी भी पेशेंट का सेंसिटिव टेस्ट नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि इसने डिजीज को रूल आउट कर दिया है। अगर आपका सेंसिटिव टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर आप आगे यूजुअली स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ या आगे डिजीज की डायग्नोसिस की तरफ प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि अगर आपका सेंसिटिव टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो इट विल इजीली रूल आउट द डिजीज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 100 people with malaria and the test detects 95 of them, आपने कोई टेस्ट किया, आपने मलेरिया की स्लाइड्स बनाई, एक्चुअली आपके पास 100 लोग ऐसे थे जिनको मलेरिया था, पर जब आपने स्लाइड्स बनाई तो उनमें से उन स्लाइड्स ने या उस टेस्ट ने 95 को डिटेक्ट किया, 5 को डिटेक्ट नहीं किया। तो अब अगर मैं आपसे कहूंगी कि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी निकालें, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या आएगी? यस, वेरी गुड, इट्स 95%। तो सिंपली आपने देखा कि we start with a group of people who truly have malaria, that is our diseased population। तो हमारी diseased population already दी हुई है, which is 100। The test we are evaluating tries to find malaria in these people, and it correctly identified 95 of them as positive। इसका मतलब है कि जो आपके ट्रू पॉजिटिव्स हैं, जो आपके टेस्ट ने डिटेक्ट किए हैं, वो 95 हैं, but it failed to detect malaria in 5 people who actually have it, but the test didn't able to detect it। तो अगर इन पेशेंट्स को डिजीज है बट टेस्ट इनको पिक नहीं कर पाया, तो ये आपके कौन से होंगे?
यस, ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में देखें, दिस इज योर ट्रू पॉजिटिव divided by true positive, which is 95, plus false negative, which is 5. So it turned out to be 95 over 100. तो जब आप निकालेंगे, it turned out to be 95%. तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो टेस्ट था, ये 90, इसकी सेंसिटिविटी 95% है, या इसमें एरर का चांस 5% है, बाकी 95% चांसेस हैं कि अगर पेशेंट को डिजीज होगी तो ये उसको पिक कर लेगा। इसका मतलब है कि ये एक सेंसिटिव टेस्ट है। क्लियर? जितनी सेंसिटिविटी हाई होती जाएगी, उतने कम चांसेस हैं कि आप केसेस को मिस करेंगे। सो हायर द सेंसिटिविटी, fewer the chance that you might miss a. Here is the chance that you will miss a case. So this is all about sensitivity. Now let's talk about specificity. स्पेसिफिसिटी का मतलब है ट्रू नेगेटिव रेट। क्या स्पेसिफिसिटी का मतलब है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल the proportion of people without the disease who test negative. It means that how good the test is at excluding the healthy people. या इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर ये टेस्ट नेगेटिव, सॉरी, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अगर आपका स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को डेफिनेटली ये डिजीज है। और अगर आपका स्पेसिफिक टेस्ट ही किसी पेशेंट का नेगेटिव आ गया, सो इट विल हेल्प यू टू एक्सक्लूड लेट मी रिपीट। जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि आपको ट्रू नेगेटिव रेट दे रहा होता है, या ये आपको बता रहा होता है कि जिन, फॉर एग्जांपल, जिन पेशेंट्स का स्पेसिफिक टेस्ट नेगेटिव आ जाए, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये इन पेशेंट्स को तो वाकई बीमारी नहीं है, या ये टेस्ट आसानी से आपके हेल्दी पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर देता है। और अगर आपका स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो ये आपको कंफर्म हो जाता है, जिस पेशेंट का स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ही इस पेशेंट को बीमारी है। और अगर पेशेंट का स्पेसिफिक टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो विल हेल्प यू टू एक्सक्लूड द हेल्दी पॉपुलेशन। मेक सेंस? स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। लेट्स डू एन एग्जांपल अगेन। अगर आपके पास 100 healthy, you have 100 healthy people and they are tested
for COVID, let's take an example, and they are tested for COVID, and 90 tests turned out to be negative. तो अब ये जो आपका कोविड का टेस्ट है, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी? गुड. सो योर ट्रू नेगेटिव्स, जिनको डिजीज भी नहीं थी और जिनको टेस्ट ने भी नेगेटिव बताया, वो आपके पास 90 है. इनको आप डिवाइड करें, ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव. अब ये जो 100 है, इन सब कोई डिजीज नहीं है. इनमें से 90 को आपके टेस्ट ने भी पिक कर लिया, टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, तो इनको आपने कह दिया ये ट्रू नेगेटिव है. बाकी जो 10 लोग हैं, उनका टेस्ट तो पॉजिटिव आया है, बट एक्चुअली उनको डिजीज नहीं है. तो ये आपके पास कौन सी कैटेगरी होगी? यस. तो ये 10 आपके फॉल्स पॉजिटिव है, और जब आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 90%. तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट जो हमने कोविड के लिए किया, ये 90% इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ये आपको 90%, अगर आपकी पॉपुलेशन है और उसमें जितने भी हेल्दी लोग होंगे, उनमें से 90% को ये इजीली एक्सक्लूड कर देगा, उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा. 10% चांसेस हैं कि केस आपका मिस हो जाएगा. क्लियर? तो दोनों की एग्जांपल से आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो उसमें हम डिजीज को पिक डिटेक्ट करने की बात करते हैं कि कितनों को हमने पिक कर लिया और उनको वाकई बीमारी थी. जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, तो हम हमारा फोकस होता है कि कितने एक्चुअली हेल्दी लोग थे जिनको हमने इजीली एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द पॉपुलेशन. So this is sensitivity and specificity. Now let's talk about predictive values. इसमें आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, इसमें आपके पास नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट समवन हु टेस्ट पॉजिटिव एक्चुअली हैज द डिजीज. जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि उसको वाकई डिजीज होगी, ये होता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ द टेस्ट. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपके पास ट्रू पॉजिटिव्स ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. एक चीज आपने याद रखनी है कि जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, ये मेजरली डिपेंड कर रही होती है प्रेवलेंस पे. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जिस जगह पे जिस डिजीज की प्रेवलेंस ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू भी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ऐसा कोई ऐसा पेशेंट आया है जो और अफ्रीका या किसी हाई रिस्क कंट्री से आया है, और उसका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो क्योंकि वहाँ पे प्रेवलेंस भी ज़्यादा है और टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, तो ऑटोमेटिकली उस टेस्ट की इस टाइम पे उस टेस्ट की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को क्या होगा? हाई होगी. तो इसलिए if in a area, let's take another example, in a area where HIV is common, a positive test for HIV likely means the disease is real, or the patient has a real disease. तो अगर किसी एरिया में किसी डिजीज की प्रेवलेंस ज़्यादा है और वहाँ से आए हुए पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू हाई होगी. नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आपको ये बताती है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट समवन हु हैज नेगेटिव टेस्ट और हु टेस्ट नेगेटिव rarely does not have any disease, does not have disease. इसका फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेवलेंस. द सेम फॉर्मूला
द सेम रूल अप्लाइज ओवर हेयर कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उस डिजीज़ की प्रेवलेंस ही नहीं है या बहुत कम है, और अगर वहाँ पे टेस्ट नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को क्या होगा? हाय। सो इसमें होता ये है कि अगर किस एरिया में प्रेवलेंस कम है और वहाँ पे टेस्ट वाक़ई नेगेटिव भी आ गया है, तो तो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू हाई होगी। So the key concept over here that you need to understand कि sense, yes, the key concept over here that you need to understand, you can ask your question. जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है फॉर अ टेस्ट। वो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर द इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ टेस्ट। जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, हमें पहले ही पता होता है कि ये टेस्ट इतने परसेंट सेंसिटिव है और इतने परसेंट स्पेसिफिक है। तो those are the inbuilt and fixed properties of a test. While when we talk about the positive predictive values and negative predictive values, वो प्रेवलेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है कि अगर हम किसी टेस्ट की कट ऑफ वैल्यू को चेंज कर दें, तो उससे टेस्ट पे क्या इफेक्ट आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डायबिटीज अगेन। हम कहते हैं कि डायबिटीज का ग्लूकोज लेवल, सॉरी, डायबिटीज के लिए ग्लूकोज लेवल का कट ऑफ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ग्लूकोज लेवल शुड बी लेस देन 120। तो हमने डायबिटीज के लिए ग्लूकोज का कट ऑफ एस्टेब्लिश किया हुआ है 120। अगर 120 से कम होगी ग्लूकोज वैल्यू तो पेशेंट हेल्दी है, अगर 120 से ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट डायबिटिक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें और हम इस कट ऑफ वैल्यू को कम कर दें, मैं इसको 120 से कम करके ये कहती हूँ कि डायबिटीज की कट ऑफ वैल्यू है 100, ग्लूकोज की वैल्यू है 100। इसका मतलब है कि अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 100 से कम आएगा तो वो हेल्दी है, जैसे ही वो 100 या 100 को एक्सीड करेगा तो वो डायबिटिक की रेंज में चला जाएगा। तो जब मैंने कट ऑफ वैल्यू को कम किया है, तो इससे टेस्ट पॉजिटिव हो आना ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? यस, ऑटोमेटिकली। अगर मैं बीएसआर कर रही हूँ तो पहले की निस्बत अब लोगों के, जब मैं बीएसआर करूंगी तो मैं ज्यादा लोगों को डायबिटीज की कैटेगरी में डालना शुरू कर दूंगी। तो जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है टू रूल इन डिजीज, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो हुआ क्या, जब आपने कट ऑफ को कम किया, उससे आपने टेस्ट की सेंसिटिविटी को बढ़ा लिया है। ऑन द अदर हैंड, जब मैंने ये कट ऑफ को कम किया, अब टेस्ट की स्पेसिफिसिटी को क्या होगा? यस, स्पेसिफिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली डायबिटीज नहीं थी, बट क्योंकि मैंने उनका कट ऑफ वैल्यू कम करके मेरे ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो गए और मैंने ज़्यादा लोगों को डायबिटिक लेवल करना शुरू कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास फॉल्स नेगेटिव्स अब फॉल्स पॉजिटिव्स अब ज़्यादा होंगे,
या अब स्पेसिफिसिटी उस टेस्ट की कम हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कहेंगे कि उस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी अब कम हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि अगर अब इसी कट ऑफ कम करने से पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को क्या होना चाहिए? अभी आपसे कहा कि जब मैंने कट ऑफ वैल्यू को कम किया है तो अब मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव्स आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको डायबिटीज नहीं थी बट उनके भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि कट ऑफ वैल्यू कम हो गई है। तो फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा हो गए हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को देखें, अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव को बढ़ा देती हूँ तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को क्या होना चाहिए? मेक सेंस? सो आपकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कम हो जाती है। On the other hand, what should happen to the negative predictive value? जब मैंने कट ऑफ कम किया था, yes, it will increase. So negative predictive value will increase, positive predictive value will decrease, specificity will decrease, and sensitivity will increase. अगर आप एक को समझ लेंगे ना, फिर दूसरा आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कट ऑफ को बढ़ा दें, मैं कहती हूँ कि नहीं, ग्लूकोज की जो कट ऑफ वैल्यू 120 नहीं होनी चाहिए बल्कि 150 होनी चाहिए। जिस चीज का लेवल 150 से कम है वो सारे आपके हेल्दी हैं, डायबिटिक नहीं है, और जैसे ही आप 150 को एक्सीड करेंगे तो आप डायबिटिक की रेंज में आएंगे। तो अब मेरे टेस्ट की सेंसिटिविटी को क्या हो गया? यस, इट इज नाउ इट्स डिक्रीज्ड। और स्पेसिफिसिटी को क्या होगा? स्पेसिफिसिटी विल बी इंक्रीज। अब जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया उसको तो कंफर्म ही हो जाएगा कि डिजीज है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को क्या होगा? Positive predictive value will increase, and what should happen to the negative predictive value? ओके, आप क्लास ले लें जितना आपके लिए पॉसिबल है, वरना मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। यू कैन watch the recording and can ask your question if you have in the next class, if you have any confusion. Basically, your question is कि नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का कैसे ये इंक्रीज हो रही है when we are decreasing the cut off, और ये कैसे डिक्रीज हो रही है when we are increasing the cut off। बेसिकली नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है, इफ दैट, आप ये देखें कि हम्म, अगर आपने कट ऑफ को कम किया है, आपने टेस्ट की सेंसिटिविटी को बढ़ा लिया है, और आपने उसकी वजह से अब ज्यादा आपको ट्रू पॉजिटिव्स मिल जाएंगे। तो जब आपको ट्रू पॉजिटिव्स मिल रहे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव्स को क्या होगा? दे विल बी डिक्रीज। दूसरा, जब आपने स्पेसिफिसिटी को बढ़ा दिया है, तो स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने की, सॉरी, आपने स्पेसिफिसिटी को कम कर दिया है। जब आप स्पेसिफिसिटी को कम कर देते हैं तो
ट्रू नेगेटिव्स को क्या होता है? And what will happen to false negatives? Basically, when we decrease the cutoff value, you can simply understand it like this: you are making the test easier to turn positive. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा कि अगर आपने ब्लड ग्लूकोज का कट ऑफ कम कर दिया है, तो अब ज्यादा चांसेस हैं कि लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, इवन व्हेन सम डू नॉट एक्चुअली हैव द डिजीज। तो उसकी वजह से अब नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है? बिकॉज यू आर कैचिंग ऑलमोस्ट ऑल द ट्रू केसेस, सो अ नेगेटिव रिजल्ट इज क्वाइट ट्रस्टवर्दी। कि अगर इस पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव आया है, देयर इज अ हाई चांस कि इसको वाकई डिजीज नहीं होगी, या इसकी जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो हाई होगी। क्लियर? क्योंकि आपने सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया है। बस आपने सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया है, सो नाउ यू आर पिकिंग अप ऑलमोस्ट ऑल द ट्रू केसेस। जब आपने सारे ट्रू पॉजिटिव्स को पिक कर रहे हैं, तो आपके फॉल्स पॉजिटिव्स को क्या हो रहा है? अगर आपके सॉरी, सी आई थिंक आई जस्ट मिस्टेक। जैसे आपके फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो रहे हैं, और क्योंकि आप सारे ही ट्रू पॉजिटिव्स को पिक कर रहे हैं और आपके फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर, बिकॉज नाउ यू आर कैचिंग ऑलमोस्ट ऑल द ट्रू केसेस, so a negative result in this case is quite trustworthy. That's why we say that negative predictive value is going to be high, particularly अगर आप किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। दिस मेक सेंस नाउ? क्योंकि आपके फॉल्स नेगेटिव्स कम हो रहे हैं, because your test is now catching almost all the disease people, और आपके ट्रू नेगेटिव्स थोड़े से कम हो रहे हैं, बट क्योंकि आपका फॉल्स नेगेटिव ज्यादा कम हो रहा है, इस वजह से आपका डिनोमिनेटर ज्यादा श्रिंक कर जाएगा, और जब आप रेशियो लेंगे तो आपकी जो ट्रू नेगेटिव्स हैं ये ज्यादा आएंगे। यस, क्योंकि अगर आपने सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो टेस्ट आ रहे हैं, देयर इज अ हाई चांस कि वो ट्रू पॉजिटिव्स ही होंगे। तो ट्रू नेगेटिव्स जो है वो कम हो जाएंगे, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, तो देयर इज अ चांस कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास
ट्रू नेगेटिव ही होगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स नेगेटिव के चांस कम हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा फॉल्स नेगेटिव्स कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर श्रिंक कर जाएगा, और जब आप रेशो लेंगे तो आपके पास नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की रेशो हाई आएगी, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की कम आएगी, ज़्यादा आएगी, सॉरी। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपने कट ऑफ को कम कर दिया है, सो नाउ द टेस्ट ऑलमोस्ट नेवर मिसेस अ ट्रूली डिजीज्ड person. Therefore, if a test says negative, you can be more confident that this person truly does not have the disease. Make sense? So, अगर आपने सेंसिटिविटी बढ़ा दी और इतने सेंसिटिव टेस्ट की वैल्यू भी अगर पेशेंट के लिए नेगेटिव आ गई है, तो इसका मतलब है कि देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस पेशेंट को बीमारी नहीं है, तो इसलिए आपकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। So this is the simple explanation. So now the basic things like sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and then the change in cutoff, all of these concepts are clear to all of you. अच्छा, अब इसमें उन्होंने हमें बताया है, सबसे पहले उन्होंने आपको ये 2/2 का टेबल बना के दिया हुआ है। Sensitivity and specificity are fixed properties of a test, while the positive predictive value and negative predictive value vary depending on the disease prevalence in a population being tested. Then we have this टेबल। ये टेबल इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको ऐसा याद कर लें या कम से कम आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कैसे बना रहे हैं, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली फॉर्मूलाज को पिक कर सकें। सेंसिटिविटी जो है वो ट्रू पॉजिटिव रेट्स आपको देती है। ये सिंपल टॉक अबाउट रूलिंग आउट डिसीज, फॉर्मूला हमने देख लिया है। स्पेसिफिसिटी जो है ये ट्रू नेगेटिव रेट्स हमें देती है। इसमें आपको कैन नो, इट टॉक्स अबाउट रूलिंग इन डिजीज। जो सेंसिटिविटी होती है वो यूजुअली जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उनकी सेंसिटिविटी हाई होती है। स्पेसिफिसिटी जो है वो आपकी कंफर्मेटरी टेस्ट की हाई होती है। लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे अगर हम डायबिटीज़ का पेशेंट है, हमारे पास पेशेंट आया और उसकी हिस्ट्री के बेस पे हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी है कि देयर इज़ अ 70% चांस कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ होगी। उसके बाद जब मैं टेस्ट लिखूंगी तो सबसे पहले मैं वो टेस्ट लिखूंगी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ताकि अगर इस पेशेंट को थोड़ा सा भी चांस है डायबिटीज़ होने का तो वो सेंसिटिव टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। तो जो मेरा पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, वो सेंसिटिव टेस्ट होना चाहिए। अगर वो सेंसिटिव टेस्ट नेगेटिव आ गया, अगर वो भी नेगेटिव आ गया, तो उसका मतलब है कि इस पेशेंट को तो चांस ही नहीं है कि ये बीमारी होगी, तो फिर तो मैं आगे प्रोसीड ही नहीं करूंगी। बट अगर मेरे पास मेरा सेंसिटिव टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो अब मुझे पता है कि अब मैंने एटलीस्ट ये तो एक्सक्लूड कर दिया आइडिया कि इसको बीमारी नहीं हो सकती। अब सेंसिटिव टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक टेस्ट टू कंफर्म कि कहीं ये मतलब ये मेरी सेंसिटिव टेस्ट में कोई एरर तो नहीं था, या ये मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं आ गया है। तो सेंसिटिव टेस्ट के बाद मैं स्पेसिफिक टेस्ट में जाऊंगी, विच इज यूजुअली इन केस ऑफ डायबिटीज इज HbA1c। अगर मेरा स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर वो क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को डिजीज है। तो जो मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट या सेंसिटिव टेस्ट किया था उससे मैंने डिजीज को रूल आउट किया था कि कम से कम ये अगर नेगेटिव होगा तो निकल जाएगा पेशेंट। और जब मैंने स्पेसिफिक टेस्ट किया तो उससे मैंने डिजीज रूल इन की है कि अगर मेरा स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसको ये बीमारी है। क्लियर? Sensitivity, high sensitivity test is used for screening. High specific tests are used for confirmation after a positive स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर हमने पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को देखा, फिर हमने नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को देखा। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज दे डिपेंड ऑन प्रेवलेंस। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होती है
अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये एक टेबल है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कट ऑफ को कम कर देंगे तो आपकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पे क्या होगा। अगर आप कट ऑफ को ज़्यादा कर देंगे तो फिर सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज पे क्या होगा। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने याद करना है। अगर आप बना लेंगे, लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर किसी जगह पे डिजीज की प्रेवलेंस ज़्यादा है तो टेस्ट की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, कि अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया ऑटोमेटिकली देयर इज अ हाई चांस कि इस पेशेंट को बीमारी होगी, क्योंकि इस जगह पे प्रेवलेंस ज़्यादा है। अगर किसी जगह पे प्रेवलेंस प्रेवलेंस कम है और वहाँ पे पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव आ गया तो वहाँ पे नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कम लोगों को बीमारी है और अगर इस पेशेंट का भी टेस्ट नेगेटिव आ गया तो देयर इज अ हाई चांस कि इसको भी बीमारी नहीं होगी। क्लियर। इस ग्राफ से आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपका टेस्ट चाहे जितना मर्जी सेंसिटिव हो या जितना मर्जी स्पेसिफिक हो, थोड़ा बहुत ओवरलैप आपको हर टेस्ट में मिलता ही मिलता है। थोड़ा बहुत रिस्क ट्रू फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव होने का हर टेस्ट में होता ही है। पर द थिंग इज जितना कम ये ओवरलैप होगा, जितना कम ये चांस होगा कि इस टेस्ट से आपको फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव मिल सकते हैं, उतना ही उस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर। के बाद हमारे पास आती है रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व, ROC कर्व। बेसिकली ROC curve is a graphical way to show the test performance। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें आपको फॉल्स पॉजिटिव रेट मिलता है विच इज 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, और अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो आपको ट्रू पॉजिटिव रेट या सेंसिटिविटी मिल रही है। अच्छा, इसमें ना एक सवाल आता है, दे बड़ा कॉमनली पूछते हैं कि बेस्ट कट ऑफ वैल्यू क्या है। तो और उन्होंने ये रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व इसी तरह की दी होती है। सो दे आस्क्ड अबाउट द बेस्ट कट ऑफ वैल्यू। बेस्ट कट ऑफ वैल्यू वो होती है, या आइडियल टेस्ट वो होता है जिसकी कर्व जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हो। ये आप ऐसे देखें कि ये कर्व, एक तो ये आपकी बिल्कुल मिडवे ही आ गई है। अगर किसी टेस्ट की कर्व इस तरह मिडवे आ जाएगी तो इसको आप कहते हैं ये यूजलेस टेस्ट है। जितनी कर्व लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाती रहेगी उतने उतना ही उस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जिस टेस्ट की कर्व जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगी वो बेस्ट टेस्ट होगा या वो आइडियल टेस्ट होगा। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये मैंने एरिया अंडर द कर्व जिसका 0.5 आया था, 0.5 एरिया अंडर द कर्व होने का मतलब है कि 50% एरिया यहाँ पे है, 50% एरिया यहाँ पे, और बिल्कुल आपको मिड वे एक कर्व मिल रही है। तो ये यूजलेस टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। द डायगोनल लाइन और मिड लाइन विद एरिया अंडर द कर्व 0.5 रिप्रेजेंट्स अ यूजलेस टेस्ट। अब इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज मैं किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट कर रही हूँ और उसके लिए मैंने उस पेशेंट का MRI कराया। अब MRI की अगर हम रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व बनाएं और मैं आपसे कहती हूँ कि ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, MRI करवा सकती हूँ और CT स्कैन करवा सकती हूँ। अब मैंने पिक करना है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर टेस्ट कौन सा है या बेस्ट टेस्ट कौन सा है।
तो उसके लिए मैं इन दोनों की रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व्स देखूंगी। और जब मैंने रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व देखी तो मुझे पता चला कि सीटी स्कैन में जो एरिया अंडर द कर्व है वो तकरीबन 0.8 है, और एमआरआई में जो एरिया अंडर द कर्व है वो ऑलमोस्ट 0.98 है। तो एरिया अंडर द कर्व एमआरआई का ज्यादा है एज कंपेयर टू द सीटी स्कैन। इसका मतलब ये है कि अगर इसी ग्राफ में ड्रॉ करूंगी तो मे बी सीटी स्कैन की कर्व ये होगी, इसका एरिया अंडर द कर्व 0.8 है, और एमआरआई की कर्व यहाँ पे आएगी, इसका एरिया अंडर द कर्व 0.9 है। जितना आप लेफ्ट कॉर्नर पे जाते जाएंगे या जितना एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता जाएगा उतना ही वो टेस्ट बेहतर होता जाएगा। तो अब इन दोनों में से बेहतर टेस्ट कौन सा है? एमआरआई। और बेस्ट टेस्ट वो होगा जो बिल्कुल ही टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाएगा, जिसका सारा ही एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। और अगर मिड वे है जिसमें 0.5 एरिया अंडर द कर्व है और 0.5 अबव द कर्व है, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या ये टेस्ट नेगेटिव है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ये एक यूजलेस टेस्ट है। क्लियर? और जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है उसका सारा ही एरिया अंडर द कर्व है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व 1 होगा। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट टेस्ट को। इसका मतलब है ये 100% एक्यूरेसी से सिक और हेल्दी पॉपुलेशन को सेपरेट कर देता है। जब हम कहते हैं कि एरिया अंडर द कर्व 0.5 है, ये बिल्कुल यूजलेस टेस्ट है, क्योंकि अब ये 50% 50% चांस है कि ये सेपरेट करेगा और 50% चांस है कि सेपरेट नहीं करेगा। लाइक सिक और हेल्दी पॉपुलेशन दोनों को कैटेगराइज करने की 50-50% चांस है, तो इसका मतलब है कि इस टेस्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्लियर? यूजली जब भी सवाल आता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे, वो बेस्ट कट ऑफ का पूछते हैं तो आंसर होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, या आप ज्यादा से ज्यादा वो आपको दो टेस्ट देके पूछ लेंगे कि इनमें से बेहतर टेस्ट कौन सा है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा वो ज्यादा बेहतर टेस्ट होगा। उसके बाद आपके पास आती है प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी, हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। इंसिडेंस वर्सेस प्रेवलेंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हमने वाइस एंड स्टडी एरर स्टार्ट किए थे। रिक्रूटिंग प्रेसिपिटेंट्स और परफॉर्मिंग स्टडी, ये दोनों एरर्स हमने कर लिए थे। आज हमने इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। मतलब ये है कि ट्रू पॉजिटिव, ये है आपका फॉल्स पॉजिटिव और ये है आपका ट्रू पॉजिटिव। अगर एरिया बिल्कुल 50% पे है तो इसका मतलब है कि हर केस, जो एक्चुअल केस है जिसको बीमारी है, जब मैं ये टेस्ट करूंगी तो 50% चांस है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये ट्रू पॉजिटिव में चला जाएगा। और 50% चांस है कि ये टेस्ट नेगेटिव आ जाए, ये टेस्ट जो है अम, ये केस जो है ये फॉल्स पॉजिटिव में चला जाएगा। या इसको आप इस तरह समझें कि जैसे हम वो करते हैं ना, कॉइन फ्लिप करते हैं। तो हर दफा आप केस को कोई ले, किसी भी केस को स्टडी कर रहे हैं, और अगर आपका जो टेस्ट है उसका एरिया अंडर द कर्व 0.5 है, तो हर दफा 50% चांस है कि वो सही पिक हो जाएगा और हर दफा 50% चांस है कि वो गलत पिक हो जाएगा। तो इस तरह के टेस्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए हम इसको यूजलेस टेस्ट कह रहे हैं।
इसके बाद हम बायसेस को कंटिन्यू करते हैं। वी हैव द बायसेस रिलेटेड टू इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। इसमें आपके पास कंफाउंडिंग बायस है, लेट टाइम बायस है और लेंथ टाइम बायस है। नहीं, वो भी रहता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। सबसे पहले आपके पास आता है लेट टाइम बायस। When we talk about the screening test, we must understand that some tests look like they are helping patients live longer, but in reality, they are just changing the timing of diagnosis, not the survival itself. और इनको हम कहते हैं कि ये बायसेस हैं। अब इसमें आपके पास आपने दो उसमें फोकस करना है, एक है लेट टाइम बायस और एक है लेंथ टाइम बायस। या सिंपल वर्ड्स में, समटाइम्स जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट करने की वजह से अब लोग ज़्यादा देर तक जिंदा रह पा रहे हैं और दे आर लिविंग लॉन्गर। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने डायग्नोसिस का टाइम चेंज करके किया है, उसका सर्वाइवल चेंज नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं बायस। इसमें आपके पास दो तरह के बायसेस हैं। लेट टाइम बायस। लेट टाइम बायस का मतलब है कि आपने क्योंकि केस को अर्ली डिटेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल, पहले अगर हम 10 साल पहले चले जाएं या 20 साल पहले चले जाएं तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो जब तक पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता था वो थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज पे होता था, और उसके बाद पेशेंट 5 7 10 साल तक जिंदा 5 साल तक जिंदा रहती और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती। तो हमने एक चीज़ सोची हुई थी कि जब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होगा तो मैक्सिमम 5 साल के अंदर अंदर पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी। ओवर टाइम हमने स्क्रीनिंग टेस्ट को बना लिया जिसमें आपके पास सिंपल एग्जामिनेशन या उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम करवा के तो बहुत अर्ली स्टेज पे मैसेज को या कैंसर्स को पिक कर लेते हैं। अब पहले पेशेंट डिटेक्ट ही होता था जाके एंड स्टेज पे और 5 साल में उसकी डेथ हो जाती थी। लेट्स सपोज अब स्क्रीनिंग की वजह से पेशेंट जो है वो 10 साल पहले डायग्नोज हो गया है, वो बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया है। जिंदा अभी भी उसने उतना ही रहना है, जब तक वो स्टेज 3 पे पहुंचेगा, स्टेज 3 के बाद उसकी 5 साल के बाद डेथ हो ही जानी है। बट क्योंकि स्क्रीनिंग की वजह से हमने डिटेक्ट बहुत जल्दी कर लिया है, तो हमें आर्टिफिशियली ऐसा लगता है कि अब तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट 15 15 20 20 साल तक जिंदा रहते हैं। हालांकि अभी भी वो 15 15 20 20 साल ज्यादा जिंदा नहीं रहते। अब वो डायग्नोज जल्दी हो जाते हैं। मेक सेंस? हेलो। इस एग्जाम्पल के अंदर से मैंने ट्रीटमेंट वाला पार्ट निकाल दिया है। वो चीज़ तो एक डिफरेंट है ना कि अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ द डिजीज। तो अगर आप बीच में से ट्रीटमेंट को निकाल के सिर्फ स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस पे फोकस करें, तो एक बीमारी जो पहले होती ही एंड स्टेज पे जाके डिटेक्ट थी और उसके बाद 5 साल के बाद पेशेंट की डेथ हो जाती थी, अब अगर आपने उसको 10 साल पहले डायग्नोज कर लिया है तो उससे आपने उसके सर्वाइवल को चेंज नहीं किया, सिर्फ अर्ली डिटेक्ट करके आपको आर्टिफिशियली ऐसा लगना शुरू हो गया है कि पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ गया है। तो इसको आप कहते हैं लेट टाइम बायस। When early detection of a disease artificially
increases the survival time even though the actual course of the disease is unchanged. This is a lead time bias. इसको क्लासिकली एग्जाम में आप कैसे टेस्ट करेंगे? They usually use the sentences like screening test seems to improve the survival, but disease course remains unchanged. So you should think about कि ये lead time bias की बात हो रही है. अगर आपके पास लेट टाइम बायस आ गया है किसी स्टडी में, आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं या उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? आप यूज़ करते हैं बैक एंड सर्वाइवल और डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट रादर देन कैलकुलेटिंग टाइम फ्रॉम डायग्नोसिस टू डेथ। तो आप क्या करते हैं कि आप बैक एंड सर्वाइवल या डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट मेजर करते हैं रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि किस टाइम डायग्नोज हुआ था और कब डेथ हुई। So you compare the mortality, not the survival duration. Clear? This is clear to all of you. The next we have is length time bias. Yeah, so we'll look at the mortality rate. हम ये कहेंगे कि 10 साल पहले कैंसर की वजह से कितने लोगों की डेथ होती थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से और अब ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है. So we will focus on mortality rate rather than just focusing on the time and the survival time. उसके बाद आता है लेंथ टाइम बायस. लेंथ टाइम बायस का मतलब ये होता है व्हेन अ स्क्रीनिंग टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज with longer latency. Longer latency period means slow growing, more often than aggressive and fast growing tumors or diseases. अच्छा, अब इसका मतलब ये होता है अगेन, अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि हमारे पास कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो स्लो ग्रोइंग होते हैं, सालों साल उनके सिम्टम्स रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते हैं और फिर पेशेंट जो है वो पेशेंट की डेथ होती है. कुछ ट्यूमर्स या कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो एग्रेसिव होती हैं, जैसे ही वो डेवलप होंगी, वो फास्ट ग्रोइंग होंगी, एग्रेसिव होंगी, वैसे ही पेशेंट की डेथ हो जाएगी. तो लेंथ टाइम बायस ये होता है कि बाज़ औक़ात जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे होते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट डिटेक्ट ही उन डिजीज़ेज़ को करता है जो कि लॉन्गर लेटेंसी वाली है या जो स्लो ग्रोइंग है. जो उसका एग्रेसिव या फास्ट ग्रोइंग वर्ज़न है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट पे आता ही नहीं है. तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम वो एग्रेसिव या फास्ट ग्रोइंग वाले केसेस को पिक ही नहीं कर पाते स्क्रीनिंग में क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है जैसे ही वो डिजीज होती है. तो जब हम एंड पे अपना एनालिसिस करते हैं तो हम जब उस डिजीज को डिस्कस करते हैं तो क्योंकि उसके अंदर हमारे पास थे ही सिर्फ लॉन्गर लेटेंसी या स्लो ग्रोइंग वाले केसेस, तो हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पास दो ट्यूमर थे, ट्यूमर ए जो कि एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और अगर किसी पेशेंट को ये डेवलप हो गया तो वो 10 साल तक जिंदा रहता है कि वो स्लो ग्रोइंग है. ट्यूमर बी था एक फास्ट ग्रोइंग या एग्रेसिव ट्यूमर, जैसे ही पेशेंट को वो डेवलप होगा पेशेंट की 6 माह के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी. तो जब मैंने स्क्रीनिंग की एनुअली तो मैंने ये कहा कि क्योंकि मैंने ट्यूमर ए को डिटेक्ट कर लिया था और पेशेंट बहुत लंबे अरसे तक रहा, तो मैं ये कहूँगी कि मेरी स्क्रीनिंग की वजह से पेशेंट जो है वो या ट्यूमर ए वाला पेशेंट बहुत लंबा जिंदा रहता है. और मैंने ट्यूमर बी को पिक ही नहीं किया क्योंकि ट्यूमर बी जिसको भी डिटेक्ट हुआ उसकी तो फौरन डेथ हो गई. तो वो जो ट्यूमर बी वाला पेशेंट है वो मेरे स्क्रीनिंग के अंदर आएगा ही नहीं क्योंकि इट विल किल द पेशेंट क्विकली. और मेरी स्क्रीनिंग में सिर्फ ट्यूमर ए या स्लो ग्रोइंग वाले केसेस आएंगे. तो इस तरह जो मेरा एनालिसिस होगा वो बाइस्ड होगा. और मुझे ऐसा लगेगा कि जिन लोगों को भी ये ट्यूमर होते हैं या जो भी मेरा स्क्रीनिंग वाला ग्रुप है उसका तो सर्वाइवल रेट ही बहुत अच्छा है. हालांकि उसका सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि जिसको एग्रेसिव स्टेज थी या एग्रेसिव डिजीज थी उसकी डेथ इतनी जल्दी होगी कि मैं उसको स्क्रीन ही नहीं कर पाई हूँ.
Clear? So the buzzword over here is screening program appear more effective because it detects less aggressive diseases. This is known as, or it detects the longer latency cases. This is known as length time bias. Clear? These 2 points are clear to all of you. और अगर जो लेंथ टाइम बायस है हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? um, you can do a randomized control trial rather than using a screening group. इसके अलावा आप इसमें भी मोर्टेलिटी आउटकम्स को वैल्यूएट करें, सिर्फ एपरेंट सर्वाइवल को वैल्यूएट ना करें। तो इस तरह से आप लेंथ टाइम बायस को कम कर सकते हैं। आपको कैसा सिनेरियो आ सकता है एग्जाम में? स्क्रीनिंग डिटेक्ट मोर स्लोली ग्रोइंग और स्लोली प्रोग्रेसिंग कैंसर्स, therefore screened patient appear to have improved outcomes. It means they are talking about length time bias. उसके बाद हमारे पास आता है कंफाउंडिंग वर्सेस अफेक्ट मॉडिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए कि कंफाउंडिंग क्या है और अफेक्ट मॉडिफिकेशन क्या है। अच्छा, अगर मैं एक स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ जिसमें मेरा एक एनालिसिस है कि जो लोग जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनको लंग कैंसर होता है। हालांकि द फैक्ट इज कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं देयर इज़ अ हाई चांस कि वो स्मोकर भी होंगे, और एक्चुअली स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। और यहाँ पे जो एक्चुअल कॉज है स्मोकिंग का, वो सॉरी, यहाँ पे जो एक्चुअल कॉज है लंग कैंसर का वो स्मोकिंग है, जिसकी वजह से लंग कैंसर हो रहा है। बट मेरे एनालिसिस में मैंने ये मिस कर दिया और मैंने डायरेक्टली कॉफ़ी को लिंक कर दिया लंग कैंसर से, और एक्चुअल कॉज को मिस कर दिया है। इसको हम कहते हैं कंफाउंडिंग बायस। मेक सेंस? इसकी एक और सिंपल एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, अगर मैं ये एक एनालिसिस देती हूँ कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लंग कैंसर होता है, व्हाइल द फैक्ट इज कि जो लोग अल्कोहलिक हैं उनका स्मोकर होने का चांस भी हाई है, और क्योंकि ज़्यादातर अल्कोहलिक स्मोकर्स भी होते हैं, तो बेसिकली स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, जो कि मैंने पॉइंट मिस कर दिया, एक्चुअल कॉज मैंने मिस कर दी, और मैंने इनडायरेक्ट डायरेक्टली अल्कोहल को लिंक कर दिया लंग कैंसर के साथ, विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसको आप कहते हैं कंफाउंडिंग बायस। ऑन द अदर हैंड अफेक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे मैं ये कहती हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने से डीवीटी होता है, बट जब मैंने इसका स्टडीफाइड एनालिसिस किया या जब मैंने इस डाटा को दोबारा देखा तो मैंने मुझे पता चला कि जो लोग ओसीपीज यूज कर रही, जो मेरा जो पॉपुलेशन जिसको मैंने स्टडी किया है उनमें से जो लोग ओसीपीज यूज कर रहे थे वो स्मोकर भी थे। तो अब हुआ ये कि ओसीपीज यूज करने की वजह से डीवीटी होता है, दिस इज अ फैक्ट। बट अगर आपके पेशेंट ओसीपीज के साथ साथ स्मोकिंग भी करें तो डीवीटी का रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसको आप कहते हैं अफेक्ट मॉडिफिकेशन।
कि कंफाउंडिंग में तो ये था कि जो एक्चुअल कॉज है मैंने वो मिस ही कर दी और मैंने किसी गलत फैक्टर के साथ उसको रिलेट कर दिया। ऑन द अदर हैंड अफेक्ट मॉडिफिकेशन में दोनों ही अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, बट आप उनमें से एक को मिस करके एक को हाईलाइट कर देते हैं। तो अगर आपका पेशेंट ओसीपीज यूज कर रहा है तो उसको भी डीवीटी हो सकता है, बट अगर वो ओसीपीज के साथ साथ स्मोकर भी होगा तो उसका रिस्क बहुत हाई हो जाएगा। बट अगर वो ओसीपीज यूज कर रहा है बट नॉन स्मोकर है तो फिर भी रिस्क रहेगा बट कंपेरेटिवली कम। क्लियर? सो कंफाउंडिंग में तो जिस चीज के साथ मैंने लिंक किया उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। अफेक्ट मॉडिफिकेशन में जिसके साथ मैंने लिंक किया उसका थोड़ा बहुत ताल्लुक था। हाँ, दूसरा फैक्टर ऐड करने से आप एसोसिएशन को बेहतर कर सकते हैं या ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। So, confounding when analyzing a medical study, sometimes an apparent association between an exposure and an outcome is not real, or the strength of the association differ between the groups. Now, there are two concepts. The one is confounding bias, and the other one is effect modification. Confounding bias means fake association or wrong association caused by a hidden variable, and effect modification, it actually represents the real association, but it changes across the subgroups or it changes by adding new factor. Confounding bias means that a confounder or a third factor that is related to both the exposure and the outcome but not in the causal pathway, it distorts or hides the true relationship between the exposure and outcome. We have discussed the example of coffee and lung cancer. How you can fix the confounding in a study? You can use a strategy like randomization, matching, stratification, and regression analysis. So these are the strategies that can be used to overcome or to decrease the confounding bias. On the other hand, we have effect modification. Effect modification means the effect of the exposure on the outcome is truly different in different subgroups, which means that the modifier actually changes the effect of the exposure, but the association was real, but adding a new thing or adding a new factor or modifier can increase the effect or can change the effect. We have discussed the example of OCPs, that OCPs can increase the risk of DVT, but if your patient is a smoker as well, it will cause a very high risk of DVT. Clear? अब हम ना इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि समझ आ जाए और कल फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे।
Okay, so let's talk about statistical hypothesis testing. Basically, जब हम कहते हैं there's a hypothesis testing, our goal is that when we run our study, we want to know if the result we found is real or just due to chance. और in simple words, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि जो भी हमारा रिजल्ट था वो वाकई मीनिंगफुल था या फिर इट्स जस्ट अ रैंडम नॉइज. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं ये कहता आई वाज कंडक्टिंग अ स्टडी. मैंने 1,000 लोगों को लिया. मैंने ये एक स्टडी कंडक्ट की कि बीटा ब्लॉकर्स देने से कि बीटा ब्लॉकर्स लेने से हार्ट रेट कम होता है. अब जब मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद मैं इसको फर्दर एनालिसिस के लिए या फर्दर टेस्टिंग के लिए सबमिट करा दूं. जब मैं इसको सबमिट करा दूंगी तो जो भी हायर अथॉरिटीज हैं या जो भी मेरी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, अब उनका पर्पस ये है कि वो ये देखें कि ये जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी या जो मेरा एक डाटा है कि बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम होता है, ये वाकई कोई मीनिंगफुल रिसर्च है भी या ये सिर्फ एक रैंडम रैंडम नॉइज है. विच इन सिंपल वर्ड्स मीन कि अगर ये ऐसा तो नहीं है कि ये बीटा ब्लॉकर्स देने से जो हार्ट रेट कम हुआ है ये सिर्फ इन्हीं 1,000 लोगों का हुआ है. मे बी अगर कोई और इनके अलावा कोई और 1,000 लोग होते या इससे बड़ी पॉपुलेशन होती तो उस पे हमें ये इफेक्ट ना मिलता. तो ये कंफर्म करने के लिए कि मेरा एनालिसिस वाकई मीनिंगफुल है या नहीं, फिर उसके बाद होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. यहाँ तक समझ आ गई है? अब जब मैंने सबमिट करा दिया उसके बाद टेस्टिंग हुई, तो उस टेस्ट के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं. या तो जो एनालिस एनालाइ सॉरी जो भी अथॉरिटी इसका एनालिसिस कर रही है वो कहेगी कि अच्छा ये जो आपने हाइपोथेसिस दी थी ये नल है. या वो ये कहेंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस दी थी ये ऑल्टरनेटिव है. नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि वो मुझे कहेंगे कि ये जो आपने कहा था कि बीटा ब्लॉकर और हार्ट रेट की आपस में एसोसिएशन है, या बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम होता है, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है. इट्स जस्ट अ रैंडम नॉइज. हमने डिफरेंट पॉपुलेशन में इसको स्टडी करके देखा है और हमें ये एसोसिएशन नहीं मिली. तो ये जो आपने एक एसोसिएशन डेवलप कर ली थी ये सिर्फ एक रैंडम चीज थी, ये सिर्फ बाय चांस इन्हीं 1,000 लोगों को हो गया. अगर आप डिफरेंट पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे या बिगर पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे तो ये अफेक्ट नहीं मिलता. तो आपकी हमने जो ऑब्जर्वेशन थी या आपका जो एनालिसिस था उसको रिजेक्ट कर दिया है. इसका कोई इफेक्ट नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस. बीटा ब्लॉकर देने से कोई फर्क नहीं पड़ा. देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड द आउटकम. और ये एक नल हाइपोथेसिस है. क्लियर?
दूसरा रिजल्ट वो मुझे ये दे सकते हैं कि जो आपने हमें ऑब्जर्वेशन दी थी या एनालिसिस दिया था, इस पे हमने इस पे वर्क किया और हमें ये पता चला कि ये एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो इफेक्ट आपने एस्टेब्लिश किया था वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। जब हमने ये टेस्ट डिफरेंट पॉपुलेशंस पे या बड़ी पॉपुलेशंस पे किया करके देखा, तो हमें पता चला कि वाकई बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम होता है। तो जो एसोसिएशन आपने स्टैब्लिश की है, इट इज अ फैक्ट, देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम, सो योर हाइपोथेसिस इज एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब भी आप कोई एनालिसिस को किसी भी हाइपोथेसिस को सबमिट कराते हैं, तो उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो वो नल की कैटेगरी में चली जाएगी या वो ऑल्टरनेटिव की कैटेगरी में चली जाएगी। अगर नल की कैटेगरी में गई तो इसका मतलब है कि जो हाइपोथेसिस आपने दी थी वो सिर्फ बाय चांस हो गई थी, ऐसा ऐसा बस बाय चांस हो गया था। एक्चुअली में वैसा नहीं है, जब हमने डिफरेंट पॉपुलेशंस पे वो स्टडी किया तो वैसा नहीं था। देयर इज नो एसोसिएशन दैट जस्ट हैपेंड बाय चांस विद यू। तो वो एक नल हाइपोथेसिस है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कैटेगरी में चली गई तो इसका मतलब है कि जो इफेक्ट आपने बनाया है वो एसोसिएशन असल में एग्जिस्ट करती है, एक्सपोजर और आउटकम का लिंक वाकई है। जब हमने इसी स्टडी को डिफरेंट लोगों पे के साथ एसोसिएट किया है या डिफरेंट पॉपुलेशंस पे किया है, तो हमें भी यही इफेक्ट मिला है। तो इसका मतलब है कि आपकी हाइपोथेसिस एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब जब हमने कैटेगराइज करना होता है बिटवीन कि ये नल हाइपोथेसिस है या ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो उसके लिए आप पी वैल्यू यूज करते हैं। पी वैल्यू का मतलब है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। पी वैल्यू बेसिकली आपको ये बताती है कि basically the p value tells us the probability of getting a result as extreme or more extreme than what we observe if null hypothesis was true। बेसिकली इसको आप यूं कह सकते हैं कि आपकी पी वैल्यू, ये आई रिपीट दैट, आपकी पी वैल्यू जितनी कम होगी, लेस देन 0.05, उतना ही चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। और जितनी आपकी पी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ग्रेटर देन 0.05%, उतना ही चांस है कि आपकी जो अम, स- आपकी जो स्टडी है या जो आपका रिजल्ट है वो स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। लेट्स सपोज मैंने एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नल हाइपोथेसिस है। अब जब वो मुझे कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस है, इसका मतलब है वो मुझे कह रहे हैं कि ये जो आपने डाटा निकाला है ये बाय चांस इस तरह हुआ है, असल में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली दे आर गिविंग मी अ नल हाइपोथेसिस। अब मैं ये कहती हूँ कि नहीं, ये नल हाइपोथेसिस नहीं है, ये एक ट्रू हाइपोथेसिस है। तो मेरे हाइपोथेसिस को ट्रू होने के लिए उसकी पी वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो कट ऑफ हम 0.05 लेते हैं, इसका मतलब है 5%।
आपकी आपकी हाइपोथेसिस जितनी भी वैलिड हो या जितनी भी सिग्निफिकेंट हो, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एरर का रिस्क होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको 5% एरर का मार्जिन दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपकी स्टडी 5% तक एरर दे रही है, तो हम उसको फिर भी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर मैंने 100 लोग 100 लोग लिए और उनमें से 95 का हार्ट रेट वाक़ई कम हुआ बीटा ब्लॉकर देने से, जबकि 5 लोगों का नहीं हुआ, इसका मतलब है कि 5% एरर है। या जो मैंने हाइपोथेसिस दी थी उसके साथ 5% मैच नहीं कर रहा। 5% तक का एरर का मार्जिन आप अपनी स्टडी को देते हैं। अगर पी वैल्यू 5% तक रहे या 0.05 से कम रहे, आप उसको फिर भी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर करते हैं और आपकी स्टडी को वो ऑल्टरनेटिव की कैटेगरी में डाल देते हैं। बट अगर आपकी स्टडी की पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ गई है, इसका मतलब है कि अब आपकी स्टडी जो आपने हाइपोथेसिस दी थी कि बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम होता है, जब हमने वो स्टडी कंडक्ट की या हमने ऑब्जर्व किया तो 100 में से 10 लोग ऐसे थे जिनका हार्ट रेट कम नहीं हुआ। तो अब जो पी वैल्यू है वो 0.05 या 5% से ज़्यादा हो गई है। तो इतने एरर का मार्जिन हम किसी भी हाइपोथेसिस को नहीं दे सकते। तो जब भी पी वैल्यू 0.05 या 5% से ज़्यादा होती है, हम कहते हैं कि नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पुट इट पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ नल हाइपोथेसिस। क्लियर? तो किसी भी थ्योरी को अप्रूव होने के लिए या किसी भी हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने के लिए उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है और अब आपकी जो स्टडी है उसको हमने सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लिया है, या उसकी जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम है। ये सारी स्टेटमेंट्स एक ही बात को एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर? अब हम इसको बुक से देखते हैं। Statistical hypothesis testing means determination of whether the results are meaningful or not. We have two things: null hypothesis, alternative hypothesis, and then we have p value. Null hypothesis, hypothesis of no difference or relationship, which means that there is no association between the disease and the risk factor in the population. Alternative hypothesis is the hypothesis of some difference or the relationship, which means that there is some association between the disease and the risk factor in the population. P-value is calculated by the comparison of two groups. The probability of obtaining the test result at least as extreme or as those observed during the test, assuming that null hypothesis is correct, which means in simple words जो probable p value होती है वो आपको false positive आने का चांस बताती है। अगर आपकी p वैल्यू बहुत बड़ी होगी, इसका मतलब है कि जो आपकी स्टडी है उसमें फॉल्स पॉजिटिव का रिस्क बहुत हाई है, तो हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपकी पी वैल्यू कम होगी, कम से कम 5 से कम होगी, तो इसका मतलब है कि इस जो आपकी स्टडी है इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव का रिस्क 5% से कम है, तो हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद हम एरर्स को स्टडी करते हैं। हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट कर लिया। आपके पास कैन हैव 4 आउटकम्स।
पहला ये होगा कि आपकी स्टडी ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। जब स्टडी मतलब जब एनालिसिस के बाद आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप 2 by 2 का टेबल बनाएंगे और आप कह रहे हैं कि स्टडी एनालिसिस के बाद नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, तो नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गई है तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है, विच मीन्स कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती तो इसका मतलब था कि कोई एसोसिएशन नहीं है। बट अगर नल हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि एसोसिएशन है, विच मीन्स कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। और अगर एसोसिएशन है तो पी वैल्यू क्या होनी चाहिए? यस। सो आपने स्टडी की और उसमें आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, और रियलिटी में भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक थी। आपने भी रिजेक्ट कर दिया, विच मीन्स आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, और रियलिटी में भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक थी। तो ये आपके पास आ जाएगी पावर, या जिसको आप सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ट्रू पॉजिटिव्स। क्लियर? दूसरी इसका आपकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, इन अदर वर्ड्स कि आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने रियलिटी में देखा तो रियलिटी में तो ये सिग्निफिकेंट थी ही स्टडी, ये एक नल हाइपोथेसिस थी। तो यहाँ पे क्योंकि अब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, रियलिटी और स्टडी, इसका मतलब है देयर इज एन एरर। तो इसको आप कहते हैं, ये जो एरर है इसको आप कहते हैं टाइप 1 एरर या अल्फा एरर। ये बेसिकली आपके, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में फॉल्स पॉजिटिव्स भी कह सकते हैं। क्या आपने उसको समझा कि वाकई एसोसिएशन है, हालांकि रियलिटी में नहीं थी, या आपने फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे कर लिए हैं? रियलिटी का मतलब है, अच्छा अब आपने ये 2 by 2 का टेबल बनाया। मैंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि बीटा ब्लॉकर लेने से हार्ट रेट कम होता है। दिस वाज माय हाइपोथेसिस। रियलिटी में भी, ये तो मेरी हाइपोथेसिस है, बट अगर आप रियलिटी में देखें, असल में देखें, तो भी बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम हो रहा है। जब मेरी ये स्टडी कंडक्ट हुई, इसके बाद जब जो आउटकम आने हैं वो 4 तरह के आ सकते हैं। यहाँ पे हम रियलिटी को देखेंगे, यहाँ पे हम टेस्ट के आउटकम को देखेंगे, या हाइपोथेसिस के आउटकम को देखेंगे। एक तो ये चांस हो सकता है कि जिन लोगों ने मेरे मेरी हाइपोथेसिस को एनालाइज किया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है,
बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम होता है, विच मीन्स उन्होंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। और रियलिटी में भी यही था कि बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम हो रहा है। तो ये आपके पास कौन सी पॉपुलेशन आ जाएगी? ये आपके पास क्या आ गया है? ट्रू स्टडी, या इसको आप कह देंगे पावर। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू स्टडी, या स्टेटिस्टिकल टर्म्स में आप इसको पावर कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गई है? दूसरा आउटकम ये हो सकता था कि आप, जिन लोगों ने मेरे हाइपोथेसिस को एनालाइज किया, उन्होंने तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पिक कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये स्टडी ठीक है, बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम होता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इन रियल वर्ल्ड बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम नहीं होता, या हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर रियलिटी में ऐसा ना हो और आपकी स्टडी उसको पिक कर ले, तो ये क्या होगा? दिस इज फॉल्स पावर और फॉल्स पॉजिटिव्स, या अब इस स्टैटिस्टिकल टर्म में आप इसको एरर कहेंगे, विच इज टाइप 1 एरर और अल्फा एरर। दिस इज क्लियर? दूस इसके अलावा क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जिन लोगों ने मेरी थ्योरी को एनालाइज किया, हाइपोथेसिस को एनालाइज किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, बीटा ब्लॉकर और हार्ट रेट की कोई एसोसिएशन नहीं है, ये एक नल हाइपोथेसिस है। जबकि रियलिटी में इनका एसोसिएशन था। तो अब ये यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यूज आएंगी? यस, यहाँ पे आपके फॉल्स नेगेटिव्स आएंगे, अगेन एरर। यहाँ पे आपका बीटा एरर आएगा, या फॉल्स नेगेटिव है। और अगर टेस्ट वालों ने भी कहा कि ये नल हाइपोथेसिस है और रियलिटी में भी ये नल हाइपोथेसिस थी, तो ये क्या होंगे आपके पास? यस, these negatives. So this is how you can interpret a data, या जब आपकी हाइपोथेसिस की का एनालिसिस होता है, तो ये चार आउटकम्स हो सकते हैं। बीटा एरर का मतलब है कि आपने जो आपका जो हाइपोथेसिस का एनालिसिस हुआ है, उसमें तो उन्होंने कहा है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, ये एक नल हाइपोथेसिस है। जबकि रियलिटी में बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम हो रहा था, एसोसिएशन थी। तो इसलिए ये उन्होंने आपको फॉल्स नेगेटिव्स दे दिए। प्रॉब्लम अब होता ये है कि हर स्टडी के अंदर पावर होती है, कुछ एरर्स भी होते हैं। अगर हमने, पावर है आपके पास 1 - बीटा, अगर मैं किसी स्टडी की पावर को बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसमें से मुझे क्या कम करना पड़ेगा? इफ आई वांट टू इंक्रीज द पावर, अगर मैं पावर बढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे बीटा को कम करना पड़ेगा, मुझे फॉल्स नेगेटिव्स को कम करना पड़ेगा। दिस मेक सेंस?
पावर वाला पॉइंट आप वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम एरर्स को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पावर कैसे बढ़ रही है। हमने इसमें अब दो तरह के एरर्स को निकाल लिया है। एक टाइप वन एरर होता है जिसे अल्फा एरर, एक टाइप टू एरर होता है विच इज बीटा एरर। ये भी हमने स्टैब्लिश कर लिया कि टाइप वन एरर बेसिकली आपके पास फॉल्स पॉजिटिव वाला एरर है, फॉल्स पॉजिटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइप टू एरर जो है वो आपके पास फॉल्स नेगेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो मेन पॉइंट्स आपको क्लियर है। जो टाइप वन एरर है विच इज रिप्रेजेंटिंग योर फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज एन इफेक्ट व्हेन इन रियलिटी देयर इजंट। आपकी स्टडी ने कहा कि एसोसिएशन है, बट रियलिटी में एसोसिएशन नहीं है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव्स है। इसका मतलब है कि आपने तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था, बट रियलिटी में ये नल हाइपोथेसिस ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिसर्च करते हैं और आप कहते हैं कि ये जो न्यू ड्रग है, ये ड्रग देने से पेशेंट्स को फायदा हो रहा है, या बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम हो रहा है, जबकि रियलिटी में, और ये आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, बट रियलिटी में बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम नहीं हो रहा, तो ये कौन सा एरर है? यस, दिस इज अ टाइप वन और अल्फा एरर। जहां पे रिसर्चर कहता है कि फायदा होगा, मतलब कि रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, बट रियलिटी में फायदा नहीं होता, ये अब एक एरर है, और इस एरर को आप कहते हैं टाइप वन एरर। You thought you found it, or you thought that you have established a link, but it is not the real one। तो ये आपके पास टाइप वन एरर या अल्फा एरर है। टाइप वन एरर की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? किसी भी स्टडी में टाइप वन एरर जो है वो रैंडमली भी हो, रैंडम चांस की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रिसर्च टेक्निक की वजह से हो सकता है। So basically, you have found a positive result, a difference, an association, or a drug effect, but it's actually not the real one. You have been fooled by either the random chance into thinking that something works when it actually does not. So basically, you rejected the null hypothesis even though it was true, it was actually a null hypothesis। इनका आपस में कोई एसोसिएशन नहीं था, बट आपने गलती से एसोसिएशन को एस्टेब्लिश कर लिया है, तो आपने एक फॉल्स पॉजिटिव एरर डेवलप कर लिया है, जिसको आप कहते हैं टाइप वन एरर। अब आपने ये याद रखना है कि टाइप वन एरर होने का चांस, बेसिकली जो ये अल्फा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज अ चांस दैट यू विल मेक दिस मिस्टेक। अगर हमने कट ऑफ वैल्यू रखी हुई है 0.05, अगर ये गलती होने का चांस 0.05 या 5% तक है, या आपका फॉल्स पॉजिटिव 5% तक है, तो भी किसी हद तक आप इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ये चांस या आपकी अल्फा की वैल्यू या फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू 0.05 से बढ़ जाती है, या पी वैल्यू से बढ़ जाती है, तो क्या आप ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे? नो। So this is clear.
जो आपके पास दूसरा एरर है उसको आप कहते हैं टाइप 2 एरर या बीटा एरर। बीटा एरर आपके पास फॉल्स नेगेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि रियलिटी में एसोसिएशन थी, बट आपने जो है कहा कि एसोसिएशन नहीं है, तो ये आपने फॉल्स नेगेटिव्स को पिक कर लिया। A type 2 error happens when the study failed to detect a real difference। क्या आप ये कहें कि आपने एक रिसर्च की, आपने कहा कि नहीं नहीं बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट कम नहीं होता, जबकि रियलिटी में होता है। तो ये अब आपने फॉल्स नेगेटिव एरर कर लिया है। क्लियर? दिस मेक सेंस? अब ये जो आपके पास बीटा है, ये आपको बताता है कि व्हाट इज द चांस और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली फाइंडिंग अ ट्रू इफेक्ट। What is the chance or what is the probability of making, sorry, I just mixed the two things। बीटा आपको ये बताता है what is the probability of making a type 2 error, और पावर का फॉर्मूला हमने किया था 1 - बीटा। अगर आपकी बीटा की वैल्यू हाई होगी या आप एक स्टडी के अंदर ज्यादा फॉल्स नेगेटिव्स को पिक कर लेंगे, तो आपकी पावर को क्या होगा? यस, पावर डिक्रीज हो जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू कम होगी, which means now you are having less chance of missing something real, या फॉल्स नेगेटिव का रिस्क कम है, तो पावर को क्या होगा? पावर आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम में आपसे पूछते हैं, ये तो आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि बीटा का और पावर का क्या लिंक है। जितना आप बीटा एरर कम करते जाएंगे, आप पावर उतनी बढ़ाते जाएंगे। अब आप पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या बीटा को कैसे कम कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप सैंपल का साइज बढ़ा देंगे, आपके पास ज्यादा डेटा होगा, इट इज इजियर टू सी द रियल इफेक्ट्स। जब आप सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो बीटा का रिस्क कम हो जाता है और पावर बढ़ जाती है। उसके बाद अगर आप एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज को बढ़ा दें, विच मीन्स कि आप बिग डिफरेंसेस हो आपके पास, तो बिग डिफरेंसेस को डिटेक्ट करना आसान होता है। या फिर आप इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को बेहतर कर दें, तो भी एरर होने का चांस कम हो जाएगा। तो ज्यादातर जब वो आपसे सवाल पूछते हैं कि पावर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो दो तरह के जवाब होते हैं, या तो बीटा को कम करके या फिर सैंपल साइज को बढ़ा के। क्लियर? दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछो। प्लीज।